ভিপিএন আমার করিমগঞ্জে সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি প্রেমী বন্ধু। বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে প্রথমে দেখে নিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম। প্রথমবারের মতো করিমগঞ্জের মাটিতে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কর্ণমধুর শ্রী শ্রী মদনমোহন আখড়ায় বার্ষিক হরিনাম সংকীর্তন। প্রথমবারের মতো করিমগঞ্জের মাটিতে পদার্পণ করলেন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। করিমগঞ্জ শহর সংলগ্ন ভাটগ্রামের ময়দানে লক্ষাধিক জনসমাবেশের সম্মুখে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বরাকের 15 আসনের মিত্রজোটের প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 3 দশক আগে বরাকের মাটিতেই বিজেপির উত্থান হয়। এবারের নির্বাচনে বিজেপির প্রতিজন প্রার্থী জয়ী হবেন বলে মন্তব্য করেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন করিমগঞ্জ জেলার বিজেপির সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য। পালন করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে আসামের মাননীয় জ্যেষ্ঠ মন্ত্রী তথা নেডার আহ্বায়ক মাননীয় শ্রীযুক্ত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয়কে। এবার জগৎজননী মা দুর্গার প্রতিচ্ছবি দিয়ে মাননীয় দেশের প্রধানমন্ত্রীকে উপহার হিসাবে তুলে দেবেন আসাম প্রদেশ বিজেপির পক্ষ থেকে আমাদের সম্মানীয় সাধারণ সম্পাদক সাংসদ রাজদীপ রায় মহোদয়। এবার আমাদের স্থানীয় শীতল পার্টি দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে উপহার হিসাবে তুলে দিচ্ছেন আমাদের সম্মানীয় সাংসদ ডক্টর রাজদীপ রায় মহোদয়। এবার মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজির প্রতিচ্ছবি দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে উপহার হিসাবে তুলে দিচ্ছেন করিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টির মাননীয় সাংসদ শ্রীযুক্ত কৃপানাথ মালা মহোদয়। এবার আমাদের সামনে বক্তব্য উপস্থাপন করবেন ভারতীয় জনতা পার্টির জ্যেষ্ঠ নেতা আসাম সরকারের বরিষ্ঠ মন্ত্রী তথা নেডার আহ্বায়ক মাননীয় ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয়। भारत माता के नरेंद्र मोदी आदिर मंचत आमार माजत समवेत भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरिया, सांसद राजदीप रॉय डांगरिया, नरेंद्र तोमार डांगरिया, बैजयंजय पांडा डांगरिया, कृपानाथ माला डांगरिया और आमार प्रार्थी सकल पोन प्रथमे आमी बराक उपत्यका राइजर होई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियाक धन्यवाद जनाम जे अहोमर निर्वाचनर प्रथमखन निर्वाचनी सभा करीमगंज जिलात प्रधानमंत्री मोदी डांगरिया आहि आमाक सम्बोधन करिছে। आमी सकलोवे प्रधानमंत्री मोदी डांगरियाक धन्यवाद और अभिनंदन जनाइছো। श्रद्धा राइज सरकार तो बीजेपीर हबने नाई सरकार बीजेपीर हब। 5टा प्रतिश्रुति मैं आपनालोकर आगत দিব खुजिছো। 2022 सनर मार्च माहर आगते अहोमर 1 लाख युवक युवतीक बीजेपी सरकारे सरकारी चाकरी দিব এই प्रतिश्रुति मैं राइजक দিব खुजिছো। श्रद्धा राइज अरुणोदय आँचनी आमी 830 टका पाई आছো। जिमान महिला अरुणोदय पोৱা নাই সকলো দুখীয়া মহিলাক অৰুণোদয় আঁচনি দিয়া হব আৰু 830 টকাৰ জাগাত প্ৰতি মাসিক 3000 টকা অৰুণোদয় আঁচনি দিয়া হব। স্বয়ং আঁচনি प्रत्येक बছৰে
2 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক দিয়া হ'ব সৰ্বমুঠ 10 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক স্বয়ং আঁচনি দিয়া হ'ব। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, এটাই কথা মই কম, আমি কোনো হিন্দীভাষী নহয়, আমি কোনো বঙালীভাষী নহয়। হিন্দু, মুছলমান, বৌদ্ধ, জৈন, খ্ৰীষ্টিয়ান আমি সকলো ভাৰতীয়, আৰু সকলো ভাৰতীয়ই অসমত বিজেপিৰ চৰকাৰ আমি কৰিমেই, কৰিব লাগিবই। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াক বৰাক উপত্যকাৰ আমি সকলো এখন উপহাৰ দিম। এই প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বৰাকৰ ৰাইজক নমস্কাৰ জনাই মই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াক ভাষণ দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছো। हम प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना भाषण देने के लिए निमंत्रित किया हूं। নমস্কার করিমগঞ্জ এবং বরাকবাসী জনসাধারণ সব ভালো আছেন না? আগন্তুক দোল উৎসব উপলক্ষে সমস্ত বরাকবাসীদের জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। तार संगे आगामी बांग्ला नववर्षेर अनेक शुभकामना। बराक वैली ने कचार केसरी, सनत दास, उल्लासकर दत्ता, द्वारिका प्रसाद तिवारी, अरुण कुमार चंदा, इंदु प्रभा देवी, संबोधन फोंगलोसा, ऐसे अनेक महान व्यक्तित्व देश को दिए हैं। असम पर वीर लचित बोरफुकन जैसे महान और पुण्य व्यक्तित्व का आशीर्वाद रहा है, जिन्होंने असम को, भारत को विदेशी आक्रांताओं से बचाने में अहम भूमिका निभाई है। आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वीर लचित बोरफुकन से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक हर देशवासी अपने राष्ट्र निर्माताओं को नमन कर रहा है। बहनों और भाइयों, ये सुखद संयोग ही है कि आज असम में अपनी चुनावी सभाओं का आरंभ मैं बराक वैली के द्वार से, गेटवे से कर रहा हूं। बराक वैली सिर्फ असम में एंट्री का ही गेटवे नहीं है, बल्कि असम में बीजेपी की डबल इंजन सरकार का भी गेटवे है। 3 दशक पहले जब देश में भाजपा का उतना विस्तार नहीं हुआ था, तब भी बराक वैली ने 15 में से 9 सीटें भाजपा को दी थी। इन वर्षों में भाजपा आपके बीच रहकर आपकी आवाज बनती रही। 5 साल के विकास और विश्वास पर इस बार बराक वैली सहित पूरा असम
भाजपा को, एनडीए को पिछली बार से भी प्रचंड मत देने के लिए आज आतुर नजर आ रहा है। आज असम में विकास की लहर है, विश्वास की लहर है। आज असम में शांति का विश्वास है, समृद्धि का विश्वास है। आज असम में एक ही मुद्दा है, विकास, तेज विकास, निरंतर विकास, सबका विकास। साथियों, दशकों पहले ये पूरा क्षेत्र बेहतर कनेक्टिविटी वाले हिस्सों में से एक था। चाय से लेकर पेट्रोलियम तक, चट्टग्राम और कोलकाता पोर्ट तक, ब्रह्मपुत्र, पद्मा, मेघना नदियों के रास्ते ही पहुंचते थे लोग। लेकिन बरसों तक चली कांग्रेस की करप्शन और वोट बैंक की राजनीति ने असम को सबसे अधिक डिस्कनेक्टेड राज्यों में शामिल कर दिया। करीमगंज के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इतना मत कीजिए, आगे ले जाना है। आप जहां हैं वहां खड़े रहिए। आपका प्यार मेरी सर आंखों पर, मैं आपके प्यार को सलाम करता हूं। लेकिन आप वहीं आगे आने की कोशिश मत कीजिए। आपके प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कांग्रेस सरकारों और उनकी नीतियों ने असम को सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और राजनैतिक हर तरह से नुकसान पहुंचाया। साथियों, 2016 में जब मैं यहां आपके बीच आया था तो ये जानकर हैरान हो रह गया कि कांग्रेस की सरकारें बराक वैली के लिए डिविजनल कमिश्नर गुवाहाटी से चलाती रही। ये कितना बड़ा अन्याय था। मुझे खुशी है कि एनडीए सरकार ने इस अन्याय को दूर किया। बराक वैली के लोगों को छोटे छोटे सरकारी कामों के लिए दूर न जाना पड़े। यहां दवाई और पढ़ाई से जुड़े संस्थान बने। इसके लिए सर्बानंद जी और उनकी सरकार ने जो काम किया है, वो काम यहां के लोग सदा सर्वदा प्रशंसा करते रहे हैं। बहनों और भाइयों, यहां बराक वैली की रेल कनेक्टिविटी की क्या स्थिति थी, इसको लेकर हर बार यहां से आवाज उठती थी, मांग उठती थी। सड़कें खस्ता हाल थी, रेल नेटवर्क सीमित था। असम के अलग अलग हिस्सों में जाने के लिए लोगों को बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता था। गैस कनेक्टिविटी को लेकर भी असम की स्थिति अच्छी नहीं थी। भाजपा सरकार इस स्थिति से असम को तेजी से बाहर निकाल रही है।
बहनों और भाइयों, आज असम में नई सड़कें बन रही हैं, नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, नए पुल बन रहे हैं। बरसों से अटके हुए भारत के सबसे लंबे ब्रिज भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किसने पूरा करवाया? भाजपा की ही सरकार ने काम किया। असम को मेघालय से जोड़ने के लिए इससे भी बड़े धुबरी फुलबारी ब्रिज का निर्माण कौन करवा रहा है? भाजपा की सरकार करवा रही है। देश का सबसे लंबा रिवर रोपवे असम को किसने दिया? भाजपा की सरकार ने दिया। किसने बरसों से अधूरे पड़े भारत के सबसे लंबे रेल रोड ब्रिज बोगीबील ब्रिज का काम पूरा करवाया? भाजपा की सरकार ने किया। चाहे एयर रूट हो, रेल रूट हो, हाईवे हो, हम हर प्रकार से असम की भारत के अन्य हिस्सों में कनेक्टिविटी को मजबूत कर रहे हैं। और इनसे भी बढ़कर हमने एक और कनेक्शन बनाया है जिसे तोड़ना असंभव है। एक कनेक्शन है असम के सामर्थ्यवान और प्रतिभाशाली लोगों से दिल का कनेक्शन। आप तो अनुभव करते हैं कि करीमगंज से सिलचर जाने के पहले कितना वक्त लगता था और अब कितना कम लगता है। असम की भाजपा सरकार ने, एनडीए सरकार ने सड़कों के निर्माण में जो बेहतरीन काम किया है उसकी प्रशंसा यहां आने वाले पर्यटक भी करते हैं। लुम्बिनी सिलचर रेल लाइन का चौड़ीकरण मिशन मोड पर किया गया। आज बड़ी ट्रेनें भी यहां पहुंच रही है। 6 साल पहले तक सिलचर से लुम्बिनी और अगरतला तक लगभग आधा दर्जन ट्रेनें चलती थी। आज ये संख्या करीब करीब 2 गुनी हो चुकी है। आज बराक वैली, दिल्ली, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, कोलकाता, त्रिवेंद्रम और अगरतला से कनेक्ट हो चुकी है। बहनों और भाइयों, आज बराक वैली के असम के पुराने गौरव को फिर लौटाने के लिए पारंपरिक ट्रेड रूट को फिर से मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। आज नदी जलमार्गों को बड़े कार्गो के परिवहन के लिए भी तैयार किया जा रहा है। सिलचर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ये क्षेत्र इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हब बन सके। इससे यहां के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। इससे यहां के किसानों की उपज आसानी से देश और दुनिया के बाजारों तक पहुंच सकेगी। साथियों, सिर्फ फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं बल्कि सौहार्द की, संस्कृति की कनेक्टिविटी को भी बीते 5 सालों में मजबूत किया गया है। भुवन तीर्थ शिव मंदिर, कासा कांटी देवी मंदिर, सिद्धेश्वर शिवबाड़ी, सोनबिल, 1857 की सिपाही क्रांति का प्रतीक वॉर मेमोरियल, ये सब बराक वैली की पहचान है। नमामि बराक फेस्टिवल से बराक वैली की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक पहचान को
एनडीए सरकार ने मजबूती दी है। कांग्रेस ने असम को हर प्रकार से डिवाइड रखा, भाजपा ने असम को हर प्रकार से कनेक्ट करने का प्रयास किया। बराक, ब्रह्मपुत्र, पहाड़ भैयाम, हर क्षेत्र का एक समान विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही भाजपा का विकास का मंत्र है। भाइयों और बहनों, आज गरीब से गरीब को, चाहे वो किसी भी मत मजहब का हो, उसको सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है, बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है। कोरोना संकट के दौरान महीनों तक मुफ्त राशन हो, आर्थिक मदद हो या मुफ्त गैस सिलेंडर, हर लाभार्थी को बिना किसी भेदभाव के दिया गया है। आज दलित को, आदिवासी को असम में बिजली और गैस कनेक्शन, हर गरीब को पक्का घर मिले, इसके लिए भी तेजी से काम हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत असम में 1.5 लाख से ज्यादा मरीजों को मुफ्त इलाज मिल चुका है। बराक वैली सहित असम के 27 लाख किसान परिवारों को सैकड़ों करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि से सीधे मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, करीमगंज सहित पूरी बराक वैली की बहनों को अब घर में पाइप से जल पहुंचाने के लिए मिशन मोड पर काम चल रहा है। बहनों और भाइयों, यहां जो टी गार्डन में काम करने वाले साथी हैं, उनके विकास के लिए असम की सरकार विशेष प्रयास कर रही है। असम की भाजपा सरकार ने लाखों भूमिहीन साथियों को पट्टे दिए हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए अनेकों नए स्कूल खोले हैं और ये काम लगातार चल रहा है। टी गार्डन में काम करने वाली गर्भवती महिलाओं को हजारों रुपयों की मदद की जा रही है ताकि वो खुद की और बच्चों की सेहत का ध्यान रख सके। हाल में केंद्र सरकार ने बजट में चाय बागान में काम करने वाले साथियों के लिए 1000 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया है। इससे चाय बागान में काम करने वाले हर परिवार के जीवन को बेहतर बनाने में बहुत मदद मिलेगी। जो अनुसूचित जाति उसके हमारे बंधु हैं, जो एससी वर्ग के युवा हैं, उनको 10वीं के बाद पढ़ाई में मदद के लिए केंद्र सरकार नई योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत मैट्रिक के बाद की स्कॉलरशिप में काफी वृद्धि की गई है। इसका लाभ बराक वैली समेत पूरे असम के एससी वर्ग के बच्चों को होने वाला है। साथियों, बराक वैली में तो फिशरीज के लिए, मछली पालन के लिए अनेक संभावनाएं हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार मछली से जुड़े व्यापार कारोबार को बहुत अधिक प्रोत्साहन दे रही है। इसलिए मछली पालन से जुड़े कारोबार के लिए केंद्र में अलग से फिशरीज मंत्रालय बनाया गया है। फिशरीज सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए की मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई है। मुझे खुशी है कि असम में भी मछली उत्पादन में बीते 5 साल में
25% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। यहां की भाजपा सरकार, एनडीए सरकार अब असम को मछली के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य पर काम कर रही है। इसका बहुत बड़ा लाभ बराक वैली के आप सभी साथियों को, हर वर्ग के परिवार को होगा। बहनों और भाइयों, आज एक तरफ भाजपा की नीति है, भाजपा का नेतृत्व है और भाजपा की नेक नीयत भी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है, जिसके पास न तो नेता है, ना ही नीति है और ना ही विचारधारा है। आज कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है, किसी भी हद तक जा सकती है, किसी के साथ भी हाथ मिला सकती है। ये विचित्र स्थिति आज पूरा देश देख रहा है। पश्चिम बंगाल में जिन वामपंथियों के साथ वो लाल सलाम कर रहे हैं, उन्हीं के साथ केरल में नूरा कुश्ती चल रही है। एक राज्य में जिसको गाली देते हैं, दूसरे राज्य में उसको गले लगाते हैं। कांग्रेस का ये कंफ्यूजन हर तरफ है। आप सोचिए, जिस पार्टी की सोच ही स्थिर नहीं हो, वो क्या असम में स्थिर सरकार दे पाएगी? क्या दे पाएंगे? क्या दे सकते हैं? क्या आसाम का भला कर सकते हैं? क्या आपका भविष्य बना सकते हैं? क्या यहां असम में देखिए, कांग्रेस किसके भरोसे मैदान में है भाई? जिन लोगों की राजनीति से यहां के कांग्रेस कार्यकर्ता दशकों से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, आज कांग्रेस का हाथ उसी ताला चाबी को लेकर घूम रहा है। साथियों, वोट के लिए किसी को भी धोखा देना, ये इनके जहन में है, इनके स्वभाव में है। यहां असम में भी धोखे और भ्रम का एक वीडियो मुझे भी देखने का मौका मिला है। आपने भी जरूर देखा होगा। इस वीडियो में यहां के कांग्रेस के नेता आपस में मंच पर ही झूठ का घोषणा पत्र बना रहे हैं। बताओ, और घोषणा पत्र बनाने में बहुत मेहनत लगती है। लोगों के विचारों को जानना पड़ता है, विचार विमर्श करता है, खजाने की स्थिति क्या है वो समझनी पड़ती है। लेकिन कांग्रेस का घोषणा पत्र तो सिर्फ घोषणाओं के लिए होता है, इसलिए वो 2-3 लोग मंच पर ही घोषणा पत्र बना लेते हैं। इस वीडियो में वो अपनी कलई, अपना जुड़ खुद ही खोल देते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ घोषणा कर दो, घोषणाएं पूरा करने के लिए नहीं होती हैं। ये कांग्रेस के नेता खुद कबूल कर रहे हैं, वीडियो मौजूद है। यही काम इन्होंने देश भर में किया है। ये लोग जानते ही नहीं कि देश की जनता कितनी समझदार है। अब आज देश की जनता की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते हैं। ये लोग जमीनी सच्चाइयों से पूरी तरह कट चुके हैं। बहनों और भाइयों, भाजपा की सरकार के लिए हमेशा देश हित सर्वोपरि रहा है, देश का विकास सर्वोपरि रहा है।
दशकों से नॉर्थ ईस्ट को जिस तरह विकास में नजरअंदाज किया गया, भाजपा सरकारें उसे मिलकर सुधार रही है। हम नॉर्थ ईस्ट को देश के विकास का प्रमुख केंद्र बना रहे हैं और इसमें असम की बहुत बड़ी भूमिका है। यहां डबल इंजन की सरकार असम के लोगों को सशक्त करने का काम कर रही है। साथियों, विकास से कोई वर्ग, कोई क्षेत्र छूटे ना, हर कोई आगे बढ़े, इसी नीति वाली डबल इंजन की सरकार को अब आपको और मजबूत बनाना है। इस बार एनडीए को पहले से भी अधिक ताकत से विजय दिलानी है। इस बार का आपका वोट असम के लोकल टैलेंट को, लोकल आर्ट को, लोकल सामान के प्रति वोकल होने के लिए है। इस बार आपका वोट असम को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने के लिए है। हम मिलकर विकास के नए आयाम तय करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं और मैं देख रहा हूं इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। वहां दूर मैं लोगों को देख रहा हूं। भाइयों बहनों, ये आपका विश्वास है, ये आपका स्नेह है और ये असम के लिए आपके सपनों का संकल्प भी है। मैं आज आपको विश्वास दिलाने आया हूं। पिछले 5 साल में हमने जिस तेजी से काम किया है, आने वाले 5 साल उससे भी ज्यादा तेजी से काम करेंगे। भाइयों बहनों, मैं फिर एक बार आपसे आग्रह करूंगा, अब चुनाव सामने है। इस सभा के बाद आप घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को मिलेंगे, मेरी बात पहुंचाएंगे, भाजपा को जिताएंगे, एनडीए को जिताएंगे, फिर से सरकार मजबूत बनाएंगे, संकल्प लेके निकलेंगे, एक एक घर जाएंगे, एक एक मतदाता को लेकर के मतदान मथक जाएंगे, पक्का करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 हेमंत बिश्व शर्मा जिंदाबाद, हेमंत बिश्व शर्मा जिंदाबाद। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে 18 বছর বা তার উপরের সকল ভোটাররা ভোটদান করুন। ভোটদান করা আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার। ভোটারদের ভোটদান করতে উৎসাহিত করতে জেলা প্রশাসনের এসভিপ সেলের মাধ্যমে পথনাটিকা ট্যাবলো প্রদর্শন চলছে। ভোটাররা নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোনো ধরনের অভিযোগ সিভিজিল অ্যাপের মাধ্যমে দাখিল করুন। ভোটের দিন শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে মাস্ক ব্যবহার করে ভোটদান করুন। কোনো প্ররোচনা বা প্রলোভনে পা না দিয়ে ভোটদান করুন। ইভিএম এ ভোট দিয়ে ভিভিপ্যাটের মাধ্যমে আপনার ভোট সুনিশ্চিত করুন।
করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসন দ্বারা প্রচারিত। প্রতি বছরের মতো এবারও কর্ণমধুর শ্রী শ্রী মদনমোহন আখড়ায় বাৎসরিক হরিনাম সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হল। কোভিড প্রোটোকল মেনেই এবারে উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান উৎসব কমিটির কার্যকর্তারা। বার্ষিক হরিনাম সংকীর্তন প্রতি বছর নিয়ে এবারও আমরা করেছি। সকল ভক্তবৃন্দ আমাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করছেন, সবাই আসছেন, আনন্দ উপভোগ করছি আমরা সবাই। আজকে মানুষ সবাই আসছেন, আমরা অনেক আনন্দ উপভোগ করছি। আমরা অষ্টপ্রহর হরিনাম সংকীর্তন প্রতি বছর আমরা করে থাকি এবং সকল ভক্তবৃন্দের সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে আমরা উৎসব করি এবং প্রতিটা মানুষ আসার জন্য আমরা সবাইকে বলি, সবাই আসেন এবং আমরা হরিনাম আমাদের আঁকড়া ছিল নদীর পাড় থেকে আমরা এইখানে আঁকড়া পেয়েছি। আসার পরে আমরা দীর্ঘদিন থেকে আমাদের বাবা দাদার আমল থেকে আমাদের এই আশ্রমে মহাযজ্ঞ অষ্টপ্রহর হরিনাম যজ্ঞ চলছে। মানুষের আজকে আমাদের এই একজন কালীর মাসয় শিলচর পানিমরা থেকে এই নামযজ্ঞ দেখার জন্য এখানে এসেছেন। সমাজের যত হিন্দু মুসলিম অনেকে আমাদেরকে এখানে ডোনেট করে, সবাই চাঁদা নিয়ে আমরা কীর্তনটা বিতরণ করি। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে 18 বছর বা তার উপরের সকল ভোটাররা ভোটদান করুন। ভোটদান করা আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার। ভোটারদের ভোটদান করতে উৎসাহিত করতে জেলা প্রশাসনের এসভিপ সেলের মাধ্যমে পথনাটিকা ট্যাবলো প্রদর্শন চলছে। ভোটাররা নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোনো ধরনের অভিযোগ সিভিজিল অ্যাপের মাধ্যমে দাখিল করুন। ভোটের দিন শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে মাস্ক ব্যবহার করে ভোটদান করুন। কোনো প্ররোচনা বা প্রলোভনে পা না দিয়ে ভোটদান করুন। ইভিএম এ ভোট দিয়ে ভিভিপ্যাটের মাধ্যমে আপনার ভোট সুনিশ্চিত করুন। করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসন দ্বারা প্রচারিত।